دن کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیاسی گہما گہمی کی۔ مریم نواز کی بہاولپور آمد، تنظیمی ورکرز کنونشن کا پنڈال سج گیا۔ ورکرز کی بڑی تعداد پنڈال میں پہنچ گئی۔ کنونشن سینٹر میں 2000 کرسیاں لگائی گئیں۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے محمود ظہیر سے جانتے ہیں جو اس وقت وہاں موجود ہے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل جا رہی ہیں اور اس حوالے سے جوش و خروش بھی بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں تو یہ وہ 2000 تنظیمی ورکرز بلائے گئے ہیں جو کہ آج کے کنونشن میں شریک ہوں گے، جس میں مریم نواز صاحبہ، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید اور مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ شریک ہوں گی۔ یہاں پر تنظیمی امور کا جائزہ لیا جائے گا اور تنظیم کی نو کے حوالے سے یہاں پر ضرور بات کی جائے گی۔ ورکرز کے ساتھ ان کے مسائل یا ان کے امور پہ بھی ضرور گفتگو کی جائے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم نواز صاحبہ کے بڑے قریبی ساتھی، بہاولپور سے سابق میئر ہیں عقیل نجم ہاشمی۔ آج مریم صاحبہ کتنی دیر میں پہنچ رہی ہیں اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے کنونشن کے حوالے؟ جی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ 30 سے 40 منٹ میں اس پروقار تقریب میں محترمہ مریم نواز صاحبہ یہاں موجود ہوں گی، اپنے جو چاہنے والے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ موجود ہوں گی یہاں پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہاولپور ثابت کرے گا کہ جو آواز پاکستان کی مسلم لیگ نون کے چپے چپے سے اٹھی تھی کہ ان کی قیادت کے لیے جو مستحق ایک شخصیت ہے وہ مریم نواز شریف ہے، اس آواز کو لندن میں نواز شریف نے سنا ہے، اور آج ہماری چیف آرگنائزر، ہماری سینئر وائس پریزیڈنٹ، ہماری قائد محترمہ مریم نواز صاحبہ بہاولپور آ رہی ہیں، اور بہاولپور بتائے گا کہ ان کے والد کہتے تھے کہ ان کا دوسرا گھر ہے، ہم دونوں باہیں کھول کے اپنی بہن کا استقبال کریں گے، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں گے۔ یہ آواز یہاں تک پہنچی ہے، کب تک پہنچی ہے، کیسے پہنچی ہے، ورکر سے جانتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ، میں ممبر کنٹونمنٹ بورڈ سید محمد علی شاہ، ہماری قائد آج پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز یہاں تشریف لا رہی ہیں، جن کا ہم بھرپور طریقے سے استقبال کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم جیسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہاولپور دوسرا گھر ہے نون لیگ کا، انشاءاللہ ہم دکھائیں گے کہ یہ نون کتنا جوش ہے آج مریم صاحب آ رہی ہیں۔ میں عبدالخالق وارڈ نمبر 5 سے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ہوں۔ میں تنظیمی کنونشن بہاولپور میں جو مریم نواز صاحبہ تشریف لا رہی ہیں ان کا ہم بھرپور استقبال کریں گے، اور اتنی کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ بہاولپور میں ان کا دوسرا گھر ہے۔ پورا استقبال کیا جا رہا ہے۔ جی اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تعداد میں ورکرز موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، ہم کچھ خواتین سے بھی بات کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ آج آ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ پہلے تو ہم انہیں دل و جان سے خوش آمدید کہتے ہیں، ہماری امیدیں سحر ہیں، اور یقیناً انہیں جو اتنا اہم ٹاسک دیا گیا ہے، میاں صاحب نے بڑے ان کے شعور کا، ایک ان کے ویژن کا، بڑے وسیع ویژن کا یہ ایک ہمارے سامنے آیا ہے۔ انشاءاللہ مسلم لیگ نون ترقی کرے گی اور ملک ترقی کرے گا، انہی کو یہ عہدہ ملنا چاہیے تھا۔ امیدیں شہر سے کتنی امید ہے؟ اپنا کس کا نام ہے انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم ان کو بہاولپور آنے پہ مبارکباد دیتے ہیں، اور یہاں پہ ایک جمع کثیر ہے خواتین کا، اور یہاں پہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ ہم سب جو ہے نا اچھے سے ان کا استقبال کریں گے۔ جی آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے آج مریم نواز؟ امیدیں شہر قوم کی بیٹی، ہماری لیڈر، نوجوانوں کی پسندیدہ قیادت بہاولپور تشریف لا رہی ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ نوجوانوں کی پسندیدہ شخصیت ہے، ہم ان کو اپنے پیارے شہر بہاولپور میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کی بہت بڑی تعداد ان کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ تیار ہیں آپ، بڑی جوش و خروش کے ساتھ ویلکم کر رہی ہیں، آپ بھی ذرا ٹھہرے نا، کھڑی ہونا ہمارے ساتھ بھی، آپ گفتگو کریں۔ جی مریم نواز صاحب آ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ مریم نواز سے بس ہم لوگوں کا یعنی کہ بہت زیادہ ان سے شکریہ ادا کریں گے ہم لوگ ان کا آنے پہ، اور مطلب ان سے یہ کہیں گے کہ مطلب آپ بہاولپور ہمارے آئی ہیں، بہاولپور ہمارے پنجاب کا بہت زیادہ خیال کریں، اور مہنگائی کو کسی طرح سے بھی مطلب کنٹرول کروائیں۔ آپ کی ڈیمانڈ سنی، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم نواز صاحبہ انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا بہاولپور ان کا ہے، اور یہ جتنی عوام آئی ہوئی ہے انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ کے لیے آئی ہوئی ہے، اور ہم بھرپور کوشش کریں گے اور مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ جتوائیں گے بہاولپور سے۔ جی بالکل، عوام کو بھی دکھائیں جی، عوام جتنا بتایا جا رہا ہے کہ جو عوام آئی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے آئی ہے، ابھی تو یہ عوام نہیں ہے، ورکرز ہیں تنظیمی کنونشن میں شرکت کے لیے، جو کہ ہر تحصیل سطح پہ سلیکٹ کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے ڈویژن بھر کے، تو یہ ابھی تو وہ لوگ ہیں، لیکن جوش و خروش پورا پایا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے جی؟ آج مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں۔ جی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے بہاولپور میں آ رہی ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ اور بھی خوشی ہوگی جب ہمارے میاں نواز شریف قائد صاحب
पाकिस्तान में वापस लौटेंगे और भरपूर अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून दोबारा से अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी। जी आप क्या कहेंगे? आपका तो सज्जन है, दिल है, मेरा तो सब कुछ है। हाँ। जी अभी हम मजीद लोगों से भी बात करेंगे, जरा रास्ता दीजिएगा। मजीद खवातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। आप पीछे रहे ना, अब पीछे रहे जरा। जी आप बताइएगा क्या मरियम नवाज साहबा के हम कौम की बेटी को खुशामदीद कहते हैं। आई लव यू मरियम नवाज। जी आप क्या कहेंगे? आई लव यू मरियम नवाज। आई लव यू मरियम नवाज। आई लव यू जी, लव यू कर रही हैं तो जी आप तो ना, आप ना कह दीजिएगा, ये चले आप भी, आपकी वाइफ साथ है। बताइएगा मरियम नवाज साहब आज ये क्या जज्बात है आपके? ये मेरे महबूब कायद की मेरी बहन, हमारी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा भावलपुर तशरीफ लाई हैं, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि वो वर्करों को टाइम दें, वर्करों को मिले। जो MN MPA साहबान हैं ये हर वक्त बीबी के साथ बैठते हैं, तो मैं इतनी अपील करता हूं अपनी बहन से कि जिस तरह मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वर्करों का ख्याल रखते हैं, तो मैं अपनी बहन से अपील करता हूं कि वो वर्करों को इज्जत दें, वर्करों का ख्याल रखें। अपील की जा रही है वर्कर्स की जानिब से, और साथ के साथ वो पंडाल सजा हुआ है इस वक्त उन तंजीमी वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से। इसमें मैं बार बार आपको बता दूं कि ये आवाम नहीं है, वर्कर्स के जो तंजीमी तहसील। बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर आपका हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, सानिहा पेशावर के बाद जनूबी पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मरियम नवाज की बहावलपुर आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। DPO बहावलपुर इबादत निसार का इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे एक वो वर्कर्स कन्वेंशन से गैदरिंग है जिसके लिए तकरीबन हम 200 के करीब अफसर और जवान यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर तरीके से सर अंजाम देंगे। जितना वेन्यू है और जो लोग इसमें एंट्रेंट हैं उनको फ़िज़िकल चेकिंग से गुजारा जाएगा। फ़िज़िकल चेकिंग के बाद उन्हें यहाँ बिठाया जाएगा। जो गेस्ट हैं स्टेज में और उनके दरमियान फासले को मेंटेन रखा जाएगा, पार्किंग को दूर किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम है वो किए। हर जगह पे जो वेन्यू है यहाँ पर भी और ड्यूरिंग मूवमेंट भी हम उन्हें प्रोटेक्शन देंगे, और इसके लिए अब जो स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक है उसको भी हम यकीनी बनाएंगे ताकि अवाम नास को भी परेशानी ना हो। और जो हमारे पासवान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यूनियन का महंगे ईंधन के खिलाफ एहतजाज। महंगी LPG पेट्रोल के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर्स का और रिक्शा ड्राइवर्स सड़कों पर निकल आए। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल मुल्तान के अजीज होटल चौक पर रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर यूनियन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। LPG की कीमत में जो इजाफा किया गया है ओगरा की जानिब से, इसके साथ साथ जो शहर में LPG ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। बात करते हैं इन्हीं से कि क्या कहेंगे। सर बताइएगा एहतजाज से क्या मौजूद है? LPG गैस आसमान को छूने लग गई है। मुजाहरा करने के बाद ये हल निकला है कि हुकूमत ने 50 रुपये उल्टा बढ़ा दिए हैं। पहले 3000 रेट था कंपनी का, अब 3050 रुपये, जिसके अंदर गैस होती है 11 किलो कुछ इशारिया 8 पॉइंट। तो आज दुकानदार को 280 रुपये मिल रही है, तो इसके बाद दुकानदार क्या बेचेगा? हमारी अपील है कमिश्नर से कि इन कंपनियों जो मल्टीनेशनल कंपनी है इनके ऊपर रेड करे, इनका रेट कम कराए, उसके बाद दुकानदारों को बुला के एक रेट का तयन हो जाए, उसके बाद इनके ऊपर अमल दरामद कराएं ताकि गरीब आदमी एक आराम से जिंदगी बसर कर सके। जितनी इंतजामिया उनसे दरख्वास्त करते हैं कि ये गरीब लोगों का क्या कसूर है, मतलब रोटी भी इन्होंने छीन ली है, ये गैस चल रहा था, डीजल पेट्रोल हर चीज़ महंगी हो गई है। तो खुदारा को मेहरबानी करें, मतलब ये इतने गंदे हुक्मरान आ गए हैं कि बेहिस्सी का आलम है ये। मतलब हर लोग अब लोग अपने आप को आग लगाने पे तैयार हैं, और ये रियासत को बचाना ये किधर गए हैं? इन्होंने जो रेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया है वो इंतहाई ऐसा इकदाम है कि मजदूर रिक्शा ड्राइवर को खुदकशी पर मजबूर करना चाह रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये जो आए हैं हुक्मरान, ये मुल्क बचाने नहीं आए बल्कि ये गरीबों को मारने आए हैं। आए दिन देखें कि ना कोई मुल्क पे अल्लाह का शुक्र है, आफत है, ना कुछ है, उसके बावजूद इतने रेट बढ़ रहे हैं। इतने रेट तो कोरोना में नहीं बढ़े थे जो अब आए दिन बढ़ाई जा रहे हैं। तो गरीब को मुकाने से अलावा इनका और कोई मंसूबा नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि चीफ जस्टिस
जस्टिस और आर्मी चीफ इस मुल्क पे और गरीबों पे रहम करते हुए इनको चलता करें, और मुल्क की हिफाजत, अवाम की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। अगर इसी तरह महंगाई होती रही तो गरीब के बच्चे मर जाएंगे। बिल्कुल जी, एहतजाज किया जा रहा है महंगी कीमतों पर, एलपीजी की और पेट्रोल की। यही मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि जो गरीब आवाम है वो महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान से खबर शामिल करेंगे। एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान के तुलबा की BZU से माइग्रेशन का मामला। पहले से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को फीस और डिग्री के तहफ़्फ़ुज़ात। वाइस चांसलर ने सिंडिकेट के फैसले में तब्दीली की वजाहत कर दी। मज़ीद बता रहे हैं शकील सुल्तान। जी, एमर्सन कॉलेज मुल्तान का एक ऐसा इदारा है जो कई सालों से मुल्तान के स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की लेवल की भी तालीम दे रहा था। उसके साथ फिर एमर्सन कॉलेज को एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान का दर्जा दे दिया गया। HEC की जानब से भी तमाम तर तकाज़े पूरे किए जाने लगे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में उसके ज़रिए एमर्सन में पढ़ रहे थे तो उनके एग्ज़ाम्स करवाने का मामला, डिग्री देने का मामला शुरू हुआ। स्टूडेंट्स की इमिग्रेशन होनी थी, वहाँ से ट्रांसफ़र होना था। इस हवाले से स्टूडेंट्स को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमें डिग्री BZU की चाहिए, इम्तिहानात वहाँ से होंगे, फीसों का भी उन्होंने सवाल उठाया। मेरे साथ एमर्सन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? तुलबा को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमें डिग्री उसकी चाहिए, हमें इम्तिहानात के, फीसों के, तो अब ये मामला किस तरह सुलझाया गया? जो सारे स्टूडेंट हैं, जो 5th 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वो BZU की तरफ से रजिस्टर्ड हैं हायर एजुकेशन कमीशन के पास। तो फिर हमने कहा कि भी इससे जो है ना हम ले तो लेंगे, वो भी हमें दे देंगे, लेकिन बाद में जब वो डिग्री अटेस्टेशन के लिए जाएंगे हम उनको डिग्री दे देंगे एमर्सन यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन उनकी होगी BZU की। तो वो हमने कहा कि हम स्टूडेंट की वेलफेयर को समझते हुए हमने कहा हम ये काम नहीं करेंगे। हम जो है ना उनको अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे हम इधर ही, पहले भी हम ही पढ़ाते थे। दूसरी बात ये कि वहाँ पे चूँकि फ़ीसें बहुत कम हैं, वो 1100 या 1200 रुपये फ़ीस देते थे, अब हमारी फ़ीस ज़रा ज़्यादा हो गई है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स की वेलफेयर के बारे में सोचता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हम इनको फ़िलहाल उधर ही रहने देते हैं। जो हमारे 5th और 6th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो उधर ही होंगे, उनको डिग्री BZU की मिलेगी, लेकिन हम उनकी ना एक्सटेंसिव क्लासेस यहाँ लेंगे ताकि उनका जो पढ़ाई का मेयार है वो उस तरीके से हो जाए जो हमने बाकी अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे किया है। जिस तरह पहले उनका चल रहा था एग्ज़ाम्स, डिग्री जो है वो BZU से मिलेगी, लेकिन जो क्लासेस हैं वो एमर्सन यूनिवर्सिटी ही पढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका हमें अपडेट करने के लिए। और बात करते हैं इंटरनेशनल करेंसी की। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 11 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 267.89 रुपये से बढ़कर 269 रुपये पर पहुंच गया। आपको आगाह करें डॉलर के हवाले से, डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 11 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 267.89 रुपये से बढ़कर 269 रुपये पर पहुंच गया। मुल्तान में जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर शहरी को जायदाद से महरूम करने का मामला। फ्रॉड के मुकदमा में गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महार इमरान से। जी महार इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लोगों को उनकी ज़मीन से जो है वो महरूम करने वाले मुल्ज़मान कानून के शिकंजे में, और आज उनकी ज़मानतें जो हैं वो भी खारिज हुई हैं। इस हवाले से 17 जो केस है, 17 एकड़ की ज़मीन थी जिसमें नादरा एहलकारों के साथ मिल के फॉर्जरी की गई, जाली जो बनाए गए डॉक्यूमेंट्स, और उसमें मुल्ज़मान ने जो खान मोहम्मद जो यहाँ पे मुद्दाई हैं इनको इनकी विरासत से, इनकी ज़मीन से महरूम कर दिया। आज केस जीत चुके हैं। क्या था, किसने ये फ्रॉड? अली शहीन और अल्लाह बख्श ने दोनों जो जाली शनाख्ती कार्ड बनाए तो दोनों ने हमारा रुपये का फ्रॉड किया, और FI मैंने पर्चा हम कराया, आज उसकी बेल खारिज हुई। अल्लाह ताला बहुत बड़ी कामयाबी दी है, अल्लाह ताला बहुत बड़ा एहसान है, शुक्र उसकी ज़ात पाक है, शुक्राना। जो उसके हक सच की जो ज़मीन थी, जो उसकी विरासत की ज़मीन से महरूम कर दिया गया। एडवोकेट मोहम्मद अरसलान खान ने दलाल दिए, मुलजिम की ज़मानत खारिज हुई। और क्या कहेंगे, ये असल में फ्रॉड था क्या? जी, मुल्ज़मान ने नादरा एहलकारों के साथ साज़बाज़ होकर फेक एंड फिक्टिशियस ID कार्ड बनाए थे, जो रिकॉर्ड को रद्द-बदल किया गया था। उसके बाद वो बेनिफिशरी बन गए थे, उन्होंने खुद को बोनाफाइड परचेजर शो कर रहे थे। दे वर सब्जेक्टेड टू इंक्वायरी। FIA ने इसमें बड़ी कारकर्दगी दिखाई, क्योंकि वो 10-11 साल से इसके मालिक बने बैठे थे, काबिज बने बैठे थे। उन्होंने उसको FIA ने जब मैटर को इंक्वायर किया, आदिल अयूब गोपांग साहब ने जो SHO हैं FIA क्राइम सर्कल के, उन्होंने जब मैटर को इंक्वायर किया तो वो कोई मुल्ज़मान जो है सबूत पेश नहीं कर सके।
पहले उनकी जो ऑनरेबल मैजिस्ट्रियल कोर्ट से उनकी बेल जो है वो खारिज हुई, और अब जो है ऑनरेबल सेशन कोर्ट से उनकी जो जमानत जो बादत गिरफ्तारी वो खारिज फरमा दी गई है। जी बिल्कुल, जमानतें जो हैं वो खारिज हुई हैं और इस वक्त मुलजमान जो हैं वो हवालात में हैं, जेल में हैं, और इस हवाले से 5 करोड़ के लगभग का एक बड़ा फ्रॉड हुआ था, जाली शनाख्ती कार्ड बनाया गया। जी माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में कस्टम इंटेलिजेंस का स्मगलिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, स्मगल शुदा सामान को कानूनी कार्रवाई के बाद नजर आतिश कर दिया। नजर आतिश किए जाने वाले सामान की मालियत 3 अरब से ज़ायद थी। डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस सैयद असद की रोही से गुफ्तगू में क्या कहना है, जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल कस्टम इंटेलिजेंस मुल्तान की जानिब से पकड़े जाने वाले सामान की कानूनी कार्रवाई के बाद जो है वो आज उसको नजर आतिश कर दिया गया। सामान की जो कुल मालियत है वो 3 बिलियन है। इस तमाम तो सूरत पे बात करेंगे। डायरेक्टर इंटेलिजेंस हमारे साथ असद सईद साहब मौजूद हैं। असद, क्या कहना चाहेंगे, आज जो है वो डिस्ट्रक्शन की जा रही है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इस वाले से क्या कहना चाहिए? इसमें जी जो हमारे लॉ में, कानून में हमारा जो एंटी स्मगलिंग के ऑपरेशंस होते हैं, जो कंट्राबैंड चीज़ें हैं, मुद्रिस चीज़ें हैं, जिनकी किसी तरह भी हमारा लॉ इजाज़त नहीं देता कि वो मार्केट में पहुंचे और पब्लिक तक उनकी एक्सेस हो, हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर और अदरवाइज़ ना, तो फिर उनको हम ऑक्शन भी नहीं कर सकते और कुछ चीज़ें एक्सपायर भी हो जाते हैं ओवर द पीरियड। तो फिर जब उनका पूरा कोर्ट का प्रोसीडिंग का प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है तो फिर हमारे CGOs में डिस्ट्रक्शन का पूरा एक प्रोसीजर लेट डाउन है, जिसने हमने मुख्तलिफ एजेंसी से रब्ता करके और पूरी एक अकाउंटिंग का सिस्टम करके फिर उन चीज़ों को हमने अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करना होता है। ठीक है, कलेक्टर कस्टम्स मोहम्मद ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, आज भी जो है वो कस्टम्स ने जो रात का एक बड़ी कार्रवाई की, इस तरह कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, क्या पैगाम लेके, क्या मिशन लेके चल रहे हैं, माशरे से इस नासुर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जी शुक्रिया। आज हमने बहावलपुर रोड पे एक बड़ा क्रैकडाउन किया है और एक वेयर हाउस से स्मगल शुदा कपड़ा और मुख्तलिफ अशिया के 7 ट्रक भरकर कस्टम वेयर हाउस में मुंतकिल किए हैं। और उसी की एक कड़ी ये है कि कस्टम्स इंटेलिजेंस आज एक डिस्ट्रक्शन कंडक्ट करवा रही है, जो कि इस लिहाज से एक बहुत ही आला मैनिफेस्टेशन है कि हम मुआशरे से कॉन्ट्राबैंड आइटम्स, मंशियात और ऐसी अशिया जो मुआशरे के लिए मुज़िर हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। स्मगलिंग का जो है वो खात्मा किया जाए। कस्टम्स कलेक्टर मोहम्मद ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज जो है वो 3 बिलियन से ज़ायद मालियत के सामान की डिस्ट्रक्शन की जा रही है, जिसमें जो है वो कीमती कपड़ा, ट्रक। बहुत शुक्रिया सईद ज़ुहैब बुखारी आपका हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर हुकूमत ने LPG बम गिरा दिया। रोहिला वाली में LPG गैस 320 रुपए फी किलो में फरोख्त, शहरी परेशान, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली हसन से। जी, शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अवाम पर LPG बम गिरा दिया गया है। LPG जो 250 रुपये फ़ी किलो थी, अब वो 70 रुपये इजाफे के साथ 320 रुपये किलो फरोख्त हो रही है, जिससे शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं। उनका यही कहना था कि पहले भी घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है, मज़ीद अब LPG महंगी होने से हमें मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ चंद शहरी मौजूद है। जी बताइए, LPG रेट 70 रुपये किलो इजाफा हो गया, क्या मसाइल हैं आपको? महंगाई की वजह से 2 टाइम का खाना भी अब मुश्किल हो चुका है। अब इतबार करें, अब एक दफ़ा सुबह सिर्फ खाते हैं और आटा नहीं मिल रहा। उसके अलावा ये जो बम गिरा दिया है LPG का 70 रुपये फ़ी केजी, हुकूमत से इल्तमास है कि महंगाई को कंट्रोल करे। अब हम बहुत परेशान हैं। तो जी बिल्कुल, आपने शहरियों से जाना है, उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत शुक्रिया अली हसन आपका हमें अपडेट करने के लिए। महंगे पेट्रोल के हवाले से बात करेंगे। फोर्टाबास में पेट्रोल महंगा होने के साथ नायाब भी हो गया। शहरी आटे के बाद पेट्रोल के हुसूल के लिए रुल गए। मार्केट में पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त होने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रोही नुमान सईद से। जी नुमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई की बात करते हैं। महंगाई से सताई अवाम पर जो है एक और मुश्किल आन खड़ी हुई है। फोर्टाबास के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर जो है पेट्रोल जो है वो नायाब हो चुका है, लेकिन जो पेट्रोल पंप जो है, जिन पेट्रोल पंप पर अवाम को जो है पेट्रोल मुयसर है, वो 300 रुपये में पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है। हमारे साथ सबसे पहले आपको हम ये दिखाएंगे, यहाँ पर जो है लंबी लंबी जो है वो कितारें लगी है। शहरों को जो है जलीलो ख्वार होने के बाद पेट्रोल मिल रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है। जी भाई बताइएगा कि पेट्रोल मिला है, कितना मिला है? क्या पेट्रोल आधा लीटर मिला है 150 का जी। 300 रुपये लीटर दे रहे हैं ये लोग, तो इतना हजूम लगा, कोई बात ही नहीं सुन रहा है। अगर दे भी रहे हैं तो ना देने के बराबर है ये।
तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, हम पेट्रोल खरीदें, पेट्रोल डलवाएं अपनी गाड़ी में, या आटा लें या घी लें, क्या कहें, किधर जाएं हम? बताइए का कितना मिला है, कितने का मिला है पेट्रोल? 150 का मिला है आधा लीटर, 300 रुपये लीटर दे रहे हैं, 300 रुपये लीटर। हाँ जी बिल्कुल 300 रुपये लीटर मिला है जी। बताइएगा आप क्या मुतालबा करेंगे? जी मुतालबा तो यही है कि हुकूमत करे, कुछ महंगाई के बारे में सोचे, कोई महंगाई कम करे, ऐसे तो आवाम कोई हाल नहीं है मुल्क। हुकूमत महंगाई को कम करे। बहुत शुक्रिया, नुमान सईद अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आटा बहरान की। शिद्दत इख्तियार कर गया, आटे के हसूल के लिए खवातीन और मर्द धक्के खाने पर मजबूर। मजीद इस हवाले से अपडेट करेंगे इमरान अकबर। मुल्क भर में आटे का बहुत बड़ा बुरान है। देखा जाए तो एक थैली जो 10 किलो की है उसके लिए भी शहरी जो है लंबी कतारों में नज़र आ रहे हैं, और जिन लोगों को लंबी कतारों के बाद नहीं मिलता आटा वो शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा सी क्या मामला है? सही परेशानी है, आटा नहीं मिलता, लैन खड़ते हैं, लैन तो धक्के रहते बाहर काट देते आदन सही कह नहीं सी आटा जरा आटा बिल्कुल कह नहीं जरे वाकई फिर उन्होंने को आटा दे दें, साकू आटा नहीं देंगे, सारे भेड़ी धियाँ सारे लैन खड़े थे, असा बड़े परेशान है, ना रिस्क मिलते साकू भें जो असा कम वास्ते वेंदे, अब कारोबार कहनी बड़ी परेशानी है। असा बहुत क्या बच्चे अपना मार्ग तू से किदे करूँ असा सारे को आटा कहनी आटे की बड़ी दिक्कत है साकू मैंने चक्कियां वेंदे ओदन 7000 रुपये मन आटा है, हूँ सारे को 7000 होवे तो असा ही आटा गिनूँ, असा बड़े परेशान है। हूँ लैन लग लगता है ऐसे आटा नहीं मिलता, बहुत परेशानी। जनाब आला सारे तो कोई मेहरबानी करो और जैसा साकू अपने हथा नाल मार रहे हो, असा बड़े बड़े परेशान है, ऐसा बहुत परेशान है इस वक्त जी। ये जो है वो हकीकत है कि जो गरीब लोग हैं उन तक आटे की जो पहुंच है वो नामुमकिन होती चली जा रही है। अगर गरीब लोग ही आटे से महरूम रहेंगे तो लोग क्या खाएंगे? इस वक्त जो है शहरी के जो बताना था उसका यही कहना था कि लाइन में लगने के बाद भी आटा नहीं मिल रहा, आटे की जो है इमरान अकबर बहुत शुक्रिया आपका। हैं और बात करते हैं सस्ती सवारी भी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगी। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होते ही महंगाई का तूफान आ गया। अशे-खुर-नोश मजदूर तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। याकूब ताहिर आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। पेट्रोल की कीमतें क्या बड़ी, हर चीज़ को आग लग गई है। शायद खुर्दोनोश जो है वो कीमतें जो हैं आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। ख़ास तौर पर जो मेहनत मजदूर तबका है उनके लिए इंतहाई परेशानी बनती जा रही है। उन लोगों का यही कहना है कि पेट्रोल की कीमतों के बढ़ते ही हर चीज़ के दाम जो हैं वो आसमानों से बातें करते हैं। इस वक्त एक मजदूर मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद जानते हैं कि इस मौके पर क्या कहते हैं। आप बताएंगे कि आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अकेले क्या कर सकते हैं कि सबको पता है कि भी कल से जो बम गिरा है अवाम के ऊपर, मजदूर तो अमीरों को तो कोई असर नहीं पड़ेगा, उन्होंने तो हमारी जेबों से निकालना है। हम तो अपनी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। आटा जो वो लाइनों में लगते हैं 10 कट्टू होते हैं, अगर हम कोई मजदूरी करने चले गए वो 10 कट्टू भी ख़त्म हो गए। फिर जो घी देख लो, दालें देख लो, चीनी देख लो, कोई भी आइटम उठा के देख लो, जैसे ही तेल बढ़ा सब ने रेट बता दिए। जो किसी की मिन्नत समाजत करें वो कहे भाई लेना ले, नहीं लेना तो ना ले। कहाँ जाए गरीब आदमी? अगर आप लोगों को इतना ही ख्याल है गरीब आवाम का, जी हम आवाम का ख्याल करेंगे, हम आवाम का ख्याल करेंगे, तो कोई आवाम के ऊपर मेहरबानी करो, मजदूर तबके के लिए कोई मेहरबानी करो। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि कहाँ जाएं, अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती, यहाँ पर आते हैं तो दुकानदार जो हैं वो धुतकार देते हैं। उनका कहना यही है कि बढ़ती हुई महंगाई को फौरी तौर पर काबू पाया जाए ताकि जो कि आम और गरीब आदमी है उसे भी कुछ रिलीफ कर सके। इनका कहना यही है कि जब हुकूमती अरकान की। जी बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर आपका हमें अपडेट करने के लिए। जहानिया में नहर लोअर बारी 2 आब 2 माह से बंद। पानी न आने से गंदुम की फसल शदीद मुतासिर। नहरों की बंदिश पर गंदुम, मकई और दीगर फसलें शदीद मुतासिर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमजद हुसैन भुट्टर से। जी अमजद हुसैन भुट्टर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के नवाई चक 115 दासर में मौजूद हूँ। यहाँ नहरों में पानी की बंदिश की वजह से जो किसान है वो शदीद परेशान है। किसानों ने एहतजाज भी किया है। इनका ये कहना है कि नहरों में पानी की किल्लत की वजह से जो इनकी फसलें हैं वो सूख रही हैं, खासकर गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ किसान भी मौजूद है, मज़ीद से बात करते हैं। बताइएगा कि नहरों में पानी की बंदिश की वजह से किन मुश्किलात का सामना है आपको? जी नहरी पानी की बंदी की वजह तो सारी कणियां खराब हो रही हैं। मक्की की फसल में शदीद पानी की लोड़ है तो नहरी पानी की बंदी इस वजह तो मक्की की फसल सुकती पई है। डीजल काफ़ी महंगा है, ट्रैक्टर की वजह तो ट्रैक्टर टूल नहीं चला सकते, बिजली लोड शेडिंग की वजह तो पानी की कमी पूरी नहीं होती पई। जी मेरे साथ एक और किसान भी मौजूद है, मज़ीद इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा कि पानी की बंदिश की वजह, जो नहरों में पानी की बंदिश है उनके हवाले से क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, इस टाइम मुश्किल का सामना है पानी की वजह से। एक तो डीजल महंगा कर दिया गया है, फसलें बिल्कुल तबाह हो रही हैं। इस टाइम जो फसल है ख़ास तौर पे गंदम की, इस वक्त पानी की उसे ऐसा ज़रूरत है। पहले से खाद नहीं मिल रही थी, अब जो है पानी का मसला खड़ा हो गया है। हम कहाँ से गरीब आदमी पानी आके लगाएं? हमारे पास तो और कोई वसाइल ही नहीं है कि उनको पानी लगाया जाए। नहरों में मेहरबानी करके हुकूमत पाकिस्तान या जो महकमा नहर है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि पानी छोड़ा जाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, इनका ये कहना है कि जो नहरों में बंदिश की वजह से इनकी जो फसल। जी अमजद हुसैन बुटर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर के नेटवर्क में इजाफा। रहीम यार खान बाईपास रोड पर नया यूटिलिटी स्टोर बना दिया गया। मखदूम सैयद अली महमूद ने नए यूटिलिटी स्टोर का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। बाईपास रोड पर एक नया यूटिलिटी स्टोर बना दिया गया जिसका इफ्तिताह मखदूम सैयद अली महमूद ने किया है। मखदूम साहब, आवाम को इस महंगाई में रिलीफ देने के हवाले से एक बड़ा स्टेप है, यूटिलिटी स्टोर बनाए जा रहे हैं, इनका नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि इस तरह के नेटवर्क को किस तरह से मजीद इन्हांस किया जाएगा ताकि आवाम जो है वो इस गरीब जो इस वक्त महंगाई में पिस रही हैं उनको रिलीफ मिल सके? जी आसिम साहब, जो हालात हैं आजकल महंगाई के, तो यूटिलिटी स्टोर तो मैं समझता हूँ नीड ऑफ द आवर था। तो मैं अपने भाई का बेहद मशकूर हूँ जिनकी एफर्ट से, मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहब जिनकी एफर्ट से यहाँ पे खोला गया यूटिलिटी स्टोर, और उम्मीद है कि आवाम को इससे मुश्किलात में उनकी कमी होगी इंशाल्लाह। सर, आप क्या समझते हैं महंगाई में ये रिलीफ देने के हवाले से यूटिलिटी स्टोर का जब नेटवर्क और दूसरे शहरों तक बढ़ाया जाएगा और जगहों पर, तो किस तरह से हेल्पफुल होगा? देखें जी, यूटिलिटी स्टोर में आपको पता है मार्केट की निस्बत कम प्राइसेस में चीज़ें मिलती हैं, तो काफ़ी अच्छी सहूलत है इसमें आवाम के लिए। गरीब लोग यहाँ पे आके बेहतर कीमतों में चीज़ें ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा स्टेप है ये यूटिलिटी स्टोर्स का। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार की इनिशिएटिव की वजह से ये नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है, खासतौर पर रहीम यार खान जो उनका बाई ज़िला है वहाँ पर, ताकि आवाम को महंगाई के। बहुत शुक्रिया आसिम सदीक आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जिला रहनुमा चौधरी शाहिद हमीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। जहाँ तक मिली मुस्लिम लीग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के क़याम का तल्लक है, तो आज से 75 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जिस तरह कुर्बानियाँ देकर, कटी फटी लाशें लेकर यहाँ जिस मकसद के लिए पहुँचे थे, वो मकसद था कि हम इस मुल्क को इस्लामी और फलाई माशरे पर तरतीब देंगे। इस्लामी और फलाई रियासत का क़याम इसका मकसद था, जो कि मादत के साथ 75 साल गुजरने के बाद भी होता हुआ अमली जामा पहनाते हुए से नज़र नहीं आ रहा। वजह उसकी वो हम सब के सामने है कि मफादात की सियासत शुरू हो गई। सियासतदानों ने अपने अपने मफाद सामने रख लिए, मुल्की मफाद, लोगों का मफाद, उसको पसे पुश डाल दिया। इसी वजह से हम पिसते पिसते 75 साल के जाके हम तरक्की करते, तरक्की की मनाजिल तय करते, उन मकासद को पूरा करते। वो मकासद तो क्या पूरे करने थे, हमने अपने मकासद पूरे करने शुरू कर दिए। इस वजह से बहुत से दर्द दिल रखने वाले लोग जो इस मुल्क में बसते हैं, उन्होंने इस पे सोचो विचार की। सोचो विचार के बाद वो अपना रोल तो अदा कर ही रहे थे किसी न किसी सूरत में, लेकिन वो एक जमात, एक सियासी मुनज़्ज़म जमात की सूरत में अभी सामने आए हैं जिसका नाम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है। तो इंशाअल्लाह हम उसके प्लेटफार्म से जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करने वाली हैं, जैसा कि बल्दियात का निज़ाम होता है। बल्दियात का निज़ाम जो है वो नर्सरी ग्रासरी रूट से स्टार्ट करने का काम है कि कोई भी सियासत या कोई भी अमल है उसको ग्रास रूट से शुरू किया जाए। उसकी वजह ये होती है कि हम लोग जो गली मोहल्ले में रहने वाले हैं वो लोग उनके मसाइल बड़ी अच्छी तरह समझते होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऊपर असम्बलियाँ इलेक्ट हो जाती हैं, वज़रा आ जाते हैं, वज़रा के MNA MPs के मफादात आ जाते हैं।
اور اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا۔ انتظامیہ مہنگی اشیاء خودنوش بیچنے والوں کے خلاف ان ایکشن، پرائس لسٹیں آویزہ نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مخصوص بازاروں میں موجود رہنے کے پابند ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد انور بریار کی زیر نگرانی اجلاس میں فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی، جرمانوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈی پی محمد کاشف اسلم کا ڈی پی آفس میں اردل روم کا انعقاد۔ ایک افسر جبری ریٹائرڈ، 12 افسران کی سروس ضبط، 28 کو شوکز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ سیف الرحمان اے ایس آئی کے 1 سال کی انکریمنٹ بند کر دی گئی۔ اے ایس آئی محمد فاروق، سیف الرحمان اور غلام مصطفیٰ کو 6 ماہ کی سروس ضبط، ہیڈ کانسٹیبلان اور دلشاد احمد اور محمد شکیل کی 3 ماہ سروس ضبط کر لی گئی۔ چولستان کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کے فروغ کے حوالے سے اہم پیشرفت۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر عطا محبوب کا کہنا ہے کہ چولستان کی تاریخی اور ثقافتی ورثے کے فروغ کے لیے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے مل کر کام کریں گے۔ اس حوالے سے موجود ہیں رضا ملک جو ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، چولستان کے ثقافتی کلچر کو اور ہیریٹیج کو جو ہے وہ فروغ دینے کے حوالے سے جو ہے ایک ایم او یو سائن کیے گئے ہیں چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں۔ اس وسیع اور اس چولستان میں 450 سے زائد ایسی جو سائٹس ہیں، آرکیولوجیکل سائٹس ہیں جن کا جو ہے مزید تحقیق ہونا باقی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ کام شروع کر دے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر عطا محبوب سر۔ بڑا زبردست کام ہونے جا رہا ہے جو آرکیولوجی کے حوالے سے، تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایم او یو سائن ہو چکی سی ڈی اے کے ساتھ؟ جی، آج اسلامی یونیورسٹی بہاولپور اور چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو گورنمنٹ کی طرف سے چولستان کی جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ، کنزرویشن اور مینجمنٹ ہے وہ سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے۔ تو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور مختلف زاویوں سے ہیریٹیج، ریسرچ، کلچر اور اس کے علاوہ فلورا فونا چولستان پہ ریسرچ کرتی ہے۔ ہمارے ڈفرینٹ یونٹس ہیں جس میں ہمارا آج اسپیسیفکلی چولستان ہیریٹیج ریسرچ سینٹر اور چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے درمیان جو مفاہمتی یادداشت ہوئی ہے اس میں جو ہم آرکیولوجیکل ایکٹیویٹی انڈر لائسنس فرام گورنمنٹ آف پنجاب کر رہے ہیں چولستان میں، اس کے لیے میوزیم ڈیولپ کرنا ایک انیشل پروجیکٹ کے طور پہ، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس پروف آف کانسیپٹ کے بعد اگلے سٹیجز پہ جانا اور گورنمنٹ سے بڑے پیمانے پہ فنڈنگ لے کے ایک بڑا میوزیم قائم کرنا، تاکہ موہنجو دڑو اور ہڑپا کی طرح جو ہاکڑا کی تہذیب ہے جو 2000 سال اس سے بھی زیادہ قدیم ہے، اور جو پہلے انسانوں کے سیٹلمنٹس تھے وہ اسی دریائے ہاکڑا کے کنارے تھے، جن کی آرکیولوجی کی ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں، تو اس کو دنیا کو روشناس کرانا اور ایک عظیم ثقافتی ورثے کی حفاظت کرنا، یہ اس ایم او یو کے تحت دونوں ادارے مل کر کریں گے۔ جی بالکل، جو ہے مفاہمتی یادداشت پہ جو ہے وہ دستخط ہو چکے اور دونوں ادارے مل کر جو ہیں وہ چولستان کے جو ہے نہ صرف یہاں ایک لائیو میوزیم جو ہے وہ قائم کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ایک بڑا میوزیم بھی بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ عملی پیش۔ بہت شکریہ رضا ملک آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔